हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दिस इज अभिलाषा द्विवेदी। और आज जो हमारा ये जो सीरीज चल रहा है, नया पॉडकास्ट, स्पिरिचुअलिटी कमिंग फ्रॉम थेरेपिस्ट्स एंड लाइफ कोचेस। सो टुडे आई एम वेरी लकी टू हैव Bela, Bela Matre, and she is PCC, that means ICF certified coach, PCC level, that's the higher level. And she's also a counselor and a very wonderful person, beautiful inside out, and a very warm welcome, Bela. Please tell us about yourself, ये जो certification है आपका, and then spirituality, which is our topic for the day. Sure. Thank you so much, ma'am, for the very kind words. I think right energies, I always see means right energies. So you telling me I'm good inside out, it's because you are good inside out. So thank you so much for that wonderful introduction. Yes, I'm a ICF PCC certified coach. That's the level two, certification in coaching. So I am a life and a leadership coach. So I work with corporates in terms of team and group coaching, helping them understand emotional intelligence, building up the new leaders who are coming in and helping them understand how emotions play a very important role in team Correct. building and, uh, in conflict management. And also I'm a life coach where I work with my clients to help them get a deeper understanding of how the life should be and connecting them to their truest self. So Wonderful, wonderful. that's what I do usually. So, as you know, like spirituality, and I think you were the first person who reached out. Okay. So, Mhm. I cannot stop myself that, the spirituality, you are already so young. So, do you remember that when, was the first thing you felt that, this is something different from the regular life, from the people who are walking around me, and I'm connected to at different level. So, when it happened? Honestly, but ma'am, like I think as I reflect back, I never knew the meaning of spirituality. I think this is the word that became very popular a few years back, at least in Right. our generation. But what I remember, ma'am, is that I had something in me from the childhood. मैं अपने आप को ना old soul की तरह relate करती थी in most of the conversations that I had around me. In fact, I'm the youngest in my family, right? Those time पे my mom and dad also used to tell me that you act very mature as per your age. तब मुझे समझ नहीं आता था what they were trying to say, but within me, I knew that there's something I'm looking out for. Mm-hmm. Now, as I'm saying, I'm able to articulate in the words, but उस time मुझे नहीं पता था. It was very subconscious thing. Where I used to feel कि, I just remember that I love observing people. Just observing why they are doing what they are doing. Not gaining any insights, but उनको observe करके ना I used to feel very good कि, कुछ समझ में आ Same. रहा है. Exactly. So, I uh-huh, still like that thing. Observing people. Such a yeah, like a great, you get a huge amount of energy also. मतलब yes. ना, right? Yes, exactly. तो मुझे ऑब्जर्व करना बहुत पसंद था, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था हाउ इट इज इफेक्टिंग मी सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली. फिर वो आपको याद होगा कि यूजुअली पीपल यूज टू स्कूल के अंदर स्क्रैप बुक शेयर करते थे, राइट? एंड वी यूज्ड टू टेल Mm-hmm. कि अपने बारे में कुछ लिखती थी वर्ड दैट डिस्क्राइब यू. आई शुड टेक ग्रेट प्राइड इन राइटिंग आई एम एन ओल्ड सोल. वो मैंने कहीं से वर्ड सीख लिया था, तो मुझे मतलब ये की चीज है जो मुझे थोड़ा बहुत रिलेट कर रही है. Unique बाकी है. आई शिवनी है कुछ मुझे समझ आ रहा है कि आप समवेट इधर उधर क्या थी मुझे भी नहीं पता बिकॉज आई वाज वेरी यंग. I think by the time I reached my college and adult age and come out of your shelled life and meet people, consciously realize हुआ कि I'm somebody who maybe is an introvert. मैं इतना कोई जाके I was never into partying and all that. Never touched alcohol in my life, never touched cigarette, nothing. Like and सब करते रहते थे कुछ कर रहे हो. People used to think कि उसको घर से कुछ pressure है and maybe that's the reason she is not doing it. मुझे इसमें मजा ही नहीं आ रहा. Like I started asking those questions to myself. Who am I Mhm. exactly, right? Why I'm not Wow. able to relate to these things? कुछ तो reason होगा, right? Around And around what age you were having this kind of um, experience? so ma'am, I think I left my home. I'm originally from Ajmer, Jaipur, that area. So I think I left for my college in the year of 19 years. Yeah. So that's when वो मुझे and I was in Delhi. So आपको पता है from Rajasthan to Oh, Delhi there yeah, was a big cultural shift for me. of course. And suddenly I felt that people are running towards something कि पीछे भाग रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था, right? And
people used to go out for drinks, for parties and everything. And I never had, to be honest, I can say that I never was in a relationship with any boyfriend या कुछ तो भी मुझे एक चीज समझ नहीं आता डीपर मीनिंग ढूंढो ना क्या हो रहा है ये व्हाई व्हाट इज दैट गोइंग ऑन राइट तुम ऐसे इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हो दैट इज थिंग यूजुअली वाज गोइंग इन माय माइंड नॉट विद बट मैं खुद को भी समझना चाह रही थी कि व्हाई आई एम ऑपरेटिंग लाइक दिस आई थिंक वो एक जर्नी थी मेरी जहाँ पे मुझे थोड़ा समझ में आया कि देयर समथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड व्हिच आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड तो लेट्स ट्राई एंड फाइंड माई सेल्फ आई थिंक हु एम आई वाला जो मेरी एक जर्नी थी वो वहां से स्टार्ट हुई लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट मैं कौन हूँ एंड आई थिंक हम्म। वो वाली एक जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही विद लॉट ऑफ नहीं नहीं, चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी वो, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो वो एक इंटरेस्ट आई थिंक वहां से थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आई वुड से कि तब मुझे समझ में आया चाहिए कुछ तो डिफरेंट हो रहा है मेरे साथ तो लेट्स ट्राई एंड पुल डीपर ट्रिगर्स एंड सी क्या हो रहा है सो या दैट्स व्हाट आई रिकॉल राइट नाउ कहाँ से आया That's nice. Actually, no, like currently I'm listening to autobiography of a yogi. Have you या have you या यस यस read यस it? यस वेरी Like गुड वेरी last year, there were a lot of recommendations about it. People on YouTube that you should definitely, especially who are from West, या as in US and these side. I never read it, and I got interested. So even he started with this, who are you inside? हु एम आई So हाँ that's what I got reminded of. I'm not saying anything else. Like I'm not any. So या like you did describe that, the things which were attracting other people of your age, they didn't mean anything to you, right? And you thought that कहाँ हूँ मैं, गलत जगह पे हूँ. हाँ मुझे एक देयर वाज अ फेज जहाँ मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत यहाँ पे तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ या आई एम इन द रॉन्ग स्पेस कुछ तो गलत है Would you say that हम्म your family was also, inclined towards spirituality? कई बार देखा है कि हम्म जैसे ना जैसे फैमिली जो है स्पिरिचुअली हम्म मोर, अगर बोले ज्यादा बोले, जैसे यू आर राइट कि अभी स्पिरिचुअलिटी वर्ड जो है बिल्कुल नया आया है डिक्शनरी में. इट एग्जिस्टेड बट हम लोग अब या बहुत यूज करते हैं. सो या रिलीजियस कहना ज्यादा सही है शायद. तो हम्म रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी में आना इज अ काइंड ऑफ पाथ, आई वुड से, या राइट? या So you had the family like that, or you are the odd one out? एक्चुअली मेरी फैमिली भी बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक हम लोग ना एज अ यूनिट लाइक माय मॉम डैड एंड माय एल्डर सिस्टर्स ऑल फाइव ऑफ अस वर वेरी आई थिंक मॉम डैड ने हमेशा डाला था कि यू हैव स्टिक टू योर वैल्यूज एंड द बिलीफ सिस्टम राइट तो वो हमें एज अ यूनिट काफी इंग्रेन था तो आई थिंक वी एज अ फैमिली नीड्स टू ऑपरेट फ्रॉम दैट माइंडसेट we were not very religious, ma'am, to be honest. Like, ऐसा नहीं होता था कि I used to see mom and dad going to temple every day. Right. The interesting part was in every conversation that we did throughout the day, भगवान का नाम हर वक्त लेता था. Hmm. It was like श्रद्धा थी. श्रद्धा थी कि कुछ भी करो तो इट वाज लाइक भगवान से डरो आई यू डूइंग द राइट थिंग तो वो मॉम डैड ने काफी माइंड में डाला था कि इट्स ओके लाइक देयर वर टाइम्स हम 3 3 6 6 महीने मंदिर नहीं गए राइट हमारे घर Mm-hmm. में एक छोटा सा मंदिर था कभी दादा दादी होते थे साथ में से वी यूज्ड टू लाइट अ दिया और समथिंग बट वी वर Right. नेवर इनटू रिचुअल्स कि आज Mm-hmm. है तो ऐसा करना है पंडित जी से ऐसा बोला इट वाज नेवर लाइक दैट स्टिल एंड अब मुझे रिफ्लेक्ट होता है क्या ब्यूटी थी इस चीज की वी वर नेवर इनटू द टेम्पल्स और समथिंग लाइक दैट बट एवरी डे गॉड वाज रिमेम्बर्ड like if something used to come स्कूल से कुछ इशू हुआ आई यूज्ड टू टेल माय मॉम या सिस्टर मॉम या पापा को तो दे यूज्ड टेल मी कि बेटा इट्स ओके लीव इट भगवान देख रहा है सो एक कहीं ना कहीं था कि देयर इज सच सुपर पावर दैट्स नर्चरिंग यू दैट्स टेकिंग केयर ऑफ यू सो वो काफी इनबिल्ट था एज अ ह्यूमन but Mm-hmm. not very religious to be honest and in terms of deeper understanding of things I think वहां पे मैं थोड़ा सा अलग जा रही थी but I think they also gave me the support where this was the only area जहाँ मैं जाके वॉइस आउट कर पाती थी कि मॉम मुझे ऐसा फील हो रहा है यार you know so even I don't think they understood at that deeper level but there was somebody who I can at least share कुछ तो भी कि there's something different तो मुझे समझ नहीं आता so I think that's where they gave me that comfort and space because there was nobody out of these five people in my life the two people in my life who I can could go out at that point of time in my childhood and tell them and
I'm trying to find a deeper meaning to this, and they would never I understand, don't right? think that Yeah, ये हो he पाता। हो पाता अगर वो हो पाता तो यहाँ हाँ, यहाँ नहीं होती, कहीं और होती। कहीं और थोड़ा होता, ज़्यादा है वो। लेकिन हाँ, मतलब you had that thing I inside would you, say spark inside you from the very, very young age, and I think your parents did contribute. उन्होंने absolutely. एक सुपर पावर का एक पावर है हमारे अबव, उसका तो एहसास बिल्कुल कराया, जिसको कि हम Abs- लोग भगवान बोलते हैं और कई लोग कुछ और भी बोल सकते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट ये, बट ऑफ कोर्स आई आल्सो अग्री कि मतलब हम लोग जो हैं जितने सारे, समवेयर इट डिड स्टार्ट विद रिलीजन, बट Hmm. spirituality and religion, would you say they are like integrated, or would you say कि नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं? What do you think? मेरा ना इस पे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है मैम, एंड वो बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से आज जो मैं रिलीजन को देख रही हूँ, मुझे वो रिलीजन के हिसाब से आई डोंट थिंक सो दी बोथ आर कनेक्टेड, बिकॉज हम रिलीजन में वी आर ट्राइंग टू force our own egos and our own rituals, right? Mm, Like for me, I strongly believe, and I think again I would give credit to my mom and dad, that every religion teaches you that how to be humble, how to be good people, right? right, right, And somewhere it has nothing to do with religion. It has only to do with a super and a higher power. Do you believe that there is a higher power above you, uh, who has built this world, right? अगर वो mm, अंडरस्टैंडिंग भी है, आई फील देन इट्स नॉट ऑलवेज, बिकॉज रिलीजियस की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट हो गई है, आई थिंक। जो पुराने जमाने में रिलीजन की डेफिनेशन थी, आई 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 क्रेव दैट, आई मैं उस वाले जमाने में पैदा होती हूँ, बट आई थिंक द टाइम्स आज वी आर लिविंग इन, हम बहुत लूजली टर्म्स यूज कर रहे हैं रिलीजन की। पीपल से दैट, if I asked somebody, I remember I asked somebody that, do you like spirituality? Does that interest you? They were like, कि yes, yes, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। I'm like, हनुमान जी का भक्त is different, right? Spirituality is different, and वो, right, and I don't blame them because वो इतना loosely term used है हमारे, right, right. हमारे वर्ल्ड में, कि people are not understanding deeper meaning क्या है। I think I would say yes and no, depending upon what's your own definition of religion and what's your own definition of spirituality. I think वो सबके लिए काफी यूनिक है अभी। तो Hmm. if we don't put that blinders on our mind कि मैं religious हूँ मतलब मैं spiritual हूँ, because वो भी आपकी अभी फीलिंग को stop कर रहा है। तो I would simply figure out deeper meaning कि religion क्या मतलब है आपका, right? Spirituality Right. का क्या मतलब है, तो I think तभी हम grow कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे मन में तो हम बोल देंगे कि हम spiritual है या religious है, but I don't think so हम God से connect हो रहे हैं, because हम अभी भी, and somebody told me, man, I think I read this from somebody, who is spiritual leader का मैं content या podcast consume करी थी, and people that I think BK Shivani. Mm-hmm. I randomly scrolled one of the reels, and she said कि purity ना इससे नहीं आती है कि you are in the temple doing आरती every day or Correct. whatever. Purity comes when you come out from that temple, how you conduct yourself as well, with Mm. purity, right? Correct, correct. With love, with compassion, with understanding that, this is also a human being, right? If you can't conduct yourself from purity, then spirituality का कोई मतलब नहीं है. These are just terms to make you feel good about it, but um, these are not the actual things. Like, you have to embody that, conduct from a space of Within. purity, right? Right. Can you do that? वो वाला question है which I keep on, asking बहुत myself सही, also every मतलब day. you have raised another point instead of answering my question, but you have raised a very valid one. I agree कि मंदिर से निकल के और फिर कुछ ऐसा हीनियस क्राइम किया या एक्ट हाँ, किया तो फिर वो जाके भी क्या फायदा, वो तो कोई right, मतलब नहीं है। right. स्पिरिचुअलिटी, लाइक इवन आई फील, व्हाट आई फील इज कि इट इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम विदिन। You Mhm. may be religious, may not be religious. Religion and spirituality कहीं पे एक जाके मिलते हैं कहीं पे, लेकिन हाँ, फिर मिलते हैं, अलग भी हाँ, हो जाते हैं, अलग भी अलग हो भी जाते हो हैं, हाँ। सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। या गुड, गुड पॉइंट, या। Like I talked about, the Swami Yogananda, हाँ like, जी। right? So I am still listening to the book. I think that ओके, is easier nowadays instead of यस। reading. So which one would you say, like, do you follow any kind of teacher in that case? Like you took BK Shivani's name, or maybe you can have others also. So do श्योर। you follow any particular spiritual leader, and maybe like anyone or books?
So I do not follow one, but I मेरी ना इंस्टाग्राम की जो फीड है मैम वो सिर्फ इसी से भरी हुई है. So it's like either I'll get Vicky Shivani, Sadhguru, or some deep quotes that they talk about. I'll tell you one book that changed my life is Destiny of Souls. It's by Michael Newton. अच्छा. उसमें ये वो बताते हैं कि souls की journey क्या होती है. That was the राइट. book that my husband gave it to me, and I read that book and I think it was beautiful. वो ये बताते हैं कि हर सोल अपनी जर्नी खुद चूज करते हैं. जब हम इस वर्ल्ड में सोल आते हैं प्लान. समटाइम सोल प्लान राइट. सोल व्हेन प्लान, वी यस यस. से कम टू दिस वर्ल्ड एंड वी से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ खराब है एंड ऑल दैट. If you go with that perception, maybe I have chosen this life because I want to learn few lessons. When you look हम्म. at this perspective now, your entire the way you show up to yourself and to the world changes. And I think उस बुक ने काफी हेल्प किया. लाइक दैट वाज वन शिफ्ट आई स्ट्रांगली रिमेम्बर कि आई राइट. जस्ट फेल्ट कि ये है कुछ जो मुझे समझा रहा है एंड समथिंग आई कैन रिलेट. एंड व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग इट फ्रॉम दैट लेंस आई फेल्ट दैट आई एम मच हैप्पियर पर्सन. लाइक मेरा द वे आई शो अप टू एवरीवन इज एक्सेप्टेंस आ गया ना, ज्यादा एक्सेप्टेंस आ गया. एक्सेप्टेंस. जो एग्जैक्टली. भी सिचुएशन है, आई कंप्लीटली एग्री. मतलब ना, कल एक यस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, आई थिंक स्पीकिंग ट्री और समथिंग. तो ओके. उसमें उसने पूछा कि कैसे लोग, कुछ लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी लेते हैं. मेरा मन हुआ कि ऐसा नहीं होता है. सबकी लाइफ एक ही बराबर बेकार होती है और एक ही बराबर अच्छी होती है. अब ये हमारा अपना समझना है दूसरे को देख के कि तुम्हारी लाइफ बेटर है और मेरी लाइफ खराब है. ऐसा एग्जैक्टली. होता नहीं है. सबकी लाइफ, ये दो चीजें जब मतलब कि यू हैव रियलाइज्ड सो अर्ली. माई आई एम ऑलवेज लेट इन सच थिंग्स, बट इट्स ओके. there I durust, I tell myself it's fine. So soul plan, when I realized कि अरे यार, this I have chosen, it's okay. I had this realization. ठीक है, if I have chosen it then I should honor it. मतलब कि जितनी मेरे से हो एब्सोल्युटली. सकता है ना, मतलब. तो एब्सोल्युटली. एक्सेप्टेंस एक अलग लेवल पे आ गया, इवन मेरी लाइफ में भी. सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यू आर सो राइट. कि सोल प्लान को जैसे ही, मतलब ये बात को समझ पाना शायद, आई डोंट नो कितना इजी है, unless you are bent towards, inclined towards spirituality. लेकिन if you are, मतलब जो challenges जो लाइफ के हैं, वो opportunities बन जाते हैं. That's what I feel. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. टोटली एग्री. So now, like you always said that, कि कभी भी ऐसा नहीं था कि you were into something different. You didn't never liked parties. So ये वाला तो question ही नहीं आता. कि now I feel when you have become more spiritual. So, but still, I would ask one question. कि, what would you say to the people who are not yet spiritual and maybe older than you, and or of your age or little younger than you, that कि कैसे spirituality की तरफ क्या मतलब डालना चाहिए, क्या पुल करना चाहिए उन लोग, कैसे करना. I think I'll tell them in a very not in a preachy sense, but if they feel that they are happy with their life, that means they don't need anything. Okay, it's fine. But if they feel that they are still not happy, they are still not contented, right? If they feel that they are being, but that's when it needs some reflection. Sit down and ask yourself: are you cribbing with the same issues in your life all through these years? Because usually वो पैटर्न ब्रेक तब नहीं होता है जब आपने अपने इनवर्ड नहीं देखा होता. राइट. आपको लगता है द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, मेरी ही लाइफ खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है. अगर आप, आई थिंक इफ somebody is going in that means you are in dire need of moving into spirituality. That's the one trigger I feel, because that will instantly shift how you see the world. Good point, yes. So I would say कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द नीड. नीड सबको है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हम कभी और डिस्कस करेंगे. बट मुझे लगता है कि जो लोग स्टक है ना, बिकॉज मैम आई आल्सो फेल्ट व्हेन आई टोल्ड यू ना कि सबकॉन्शियस में मुझे नहीं पता था स्पिरिचुअलिटी में. लेकिन मेरी लाइफ में भी एक जोन आया था वेयर आई फेल्ट वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक विद इन माई सेल्फ. मुझे मेरे रिलेशनशिप्स वर नॉट गोइंग वेल, माई प्रोफेशनल स्पेस वर नॉट गोइंग वेल. मेरे जिंदगी के अराउंड आई रियलाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि like things are, I am losing control over life. There was a phase in my late 30s, I would say, and तब मैंने realize किया कि instead of observing people, I am judging them.
जब जज करने लग गई तो आई स्टार्टेड हैविंग दोस नेगेटिव राइट। स्पाइरल इन माय माइंड। वो नेगेटिव स्पाइरल इतना बन गया कि आई डिड नॉट लाइक माई सेल्फ, और वो सिर्फ हमें ही पता है, राइट? दैट रियलाइजेशन नोबडी कैन टेल यू, यू विल स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ आई एम नॉट लाइकिंग माई सेल्फ द वे, राइट? अगर आपको ऐसी भी फीलिंग होती है, दैट्स द नीड फॉर यू टू मूव इनटू स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक ये कुछ ट्रिगर्स हैं, लाइक if you can identify, and that needs reflection, and that needs lot वंडरफुल। of openness. I हम्म। feel that needs lot of openness. Like if you can't accept to yourself only, to your inner ones, then आपकी growth नहीं है, right? आपको किसी और को नहीं बोलना, खुद को ही बोलना है कि खुद को ही करना। these patterns are not helping me. These the way I'm showing to the world is not helping me. Those हम्म। negative thoughts I'm having every day is not helping me. उस टाइम अगर आप ये सोच रहे हो, किसी को ब्लेम गेम के लिए निकाल लिया, इसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, इसकी वजह से ऐसा हूँ, एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई आई रेड समवेयर, एंड वो मेरे तक हो गई कि जब हम ऊपर जाते हैं भगवान के पास, राइट, भगवान यही नहीं बोलते कि उसने ऐसा किया इसलिए तुमने ऐसा किया, राइट? आपका कर्म आपके पास है, उसने हम्म। कुछ भी किया, वर यू द पर्सन हु गॉट distracted, वर यू द पर्सन हु sailed करेक्ट with that करेक्ट। person? If yes, your karma negative में, like मैं अपने आप राइट। को ऐसे ट्रू रखती हूँ कि people में, क्योंकि you will never get an ideal world, right? वो जब हम हम्म। सब spiritual होंगे, I think that's when the ideal world will be, right? But ideal world कभी नहीं होगा, right? तो मैं कब तक दूसरे को ब्लेम करती रहूँ कि पॉसिबल ही उसने ऐसा नहीं है। किया, exactly उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, right? Then तो ये लूप है जो कभी टूटेगा नहीं, किसी को तो लूप तोड़ना पड़ेगा, and that I think the हम्म। loop will only get एंड broken. दैट पर्सन हैज टू बी यू। It has to be you. Gives so much liberation, मैम। वो जो आपको पता है ना, हम्म। कंट्रोल अभी भी मेरे हाथ में है, not यस। to react. Like very liberating thought. I can choose just not to react. I can choose not to sail into this हम्म। circus. I can choose not to, go in that negative zone. वो कंट्रोल आपके पास है, जब आप कंट्रोल आपके पास रखते हो, that's very liberating. I think वो एक चीज है that इसका people. एहसास होना बड़ा मुश्किल है। ये जो मतलब एक जो बोलते हैं ना, जैसे यहाँ तक पानी आया तब तक तो ठीक है, यहाँ आया तो डूबे। तो उसी हाँ, तरह से है कि वो जब तक यहाँ आ नहीं जाता और तब आप उसको हाँ, एन्जॉय नहीं कर पाते, वो बहुत सही बोला। आई कैन टोटली सी दैट, यू नो व्हाट यू आर सेइंग, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन यही लोगों की जैसे कोई भी चीज़ें होती, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, right, पेरेंट्स चिल्ड्रन, या फिर बिकॉज यू आर इनटू रिलेशनशिप्स आल्सो, yeah, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, पेरेंट्स चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ, you know, a person committed suicide. He mm, committed suicide, of course. It's mm. painful, but he should have chosen not to. That That the was, power still is with you. हाँ, मतलब कि I have just one question कि what kind of message you have left for your son? My question is just that, but of course, you know, that's not possible for him to respond. Mm, So mm, ये जो हम लोग, वो जो चीज है ना कि सामने वाला गाली दे रहा है तो मुझे भी गाली देना है, यार, you have to choose to, you know, keep yourself back, because yeah. that is not right. आप भी नेगेटिव ही हुए। सामने आप वाला भी तो है, नेगेटिव, हाँ। ये वाली उसको चीज। जस्टिफिकेशन मोड में जाना कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, कैन नेवर हेल्प, इट कैन बिल्कुल। नेवर हेल्प। समटाइम्स आई सो फील कि बड़े लोग जो होते हैं ना, वो बड़े होते ही नहीं है, वो साइज में बड़े होते हैं। I feel that age, maturity, and age has nothing to do. Like I think करेक्ट। wisdom is something. I always say कि knowledge मतलब सब में है, लेकिन wisdom is the art to know when to apply what, right? हम्म। And I think अगर हम wisdom की तरफ भागेंगे ये दुनिया, तो I think we would be a much happier person. हम बहुत knowledgeable हैं, हम सब बहुत knowledgeable हैं. Info is at the tip of the finger, right? Chat GPT आ गया है, आप कुछ भी बोलो आपके पास, you have everything A to Z in front of you. But if you don't know how to apply that, what's the point of being a human being, right? फिर तो एग्जैक्टली हम भी जब AI है। तो I मोस्ट इवॉल्व्ड आप हैं, आप मोस्ट exactly. इवॉल्व, नहीं, अब तो पीछे जा रहे हैं। मतलब हम्म, आई सॉ वन पोस्ट ऑन लिंक्डइन, उसमें किसी ने सजेस्ट किया था, साइकोलॉजिस्ट ने, कि यू नो व्हाट, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स गो ऑन चैट जीपीटी एंड आस्क दीज क्वेश्चन। आई सेड वाह, हम्म, वेरी गुड। चैट जीपीटी को हम लोगों ने बनाया और अब हम लोग चैट जीपीटी की शरण में जा रहे हैं। exactly. हाउ रिडिकुलस इज दैट। आई डिड कमेंट ऑन दिस कि मतलब आपकी तो प्राइवेसी भी जाती है। दे आर Right. नॉट रियलाइजिंग। आप एक चीज सर्च कर लीजिए अमेजोन पर या कुछ कहीं पे गूगल कर लीजिए,
फट हम्म, से वो आपके फेसबुक में आने लगेगा, यूट्यूब में वैसा ही दिखने लगेगा, सब कुछ एल्गोरिदम ऐसे चेंज हो जाता है। हम्म, और कैसे लोग कुछ भी अपनी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है बाकायदा ईमेल आईडी डाल के, आई डोंट नो दैट हु इज नॉट गेटिंग इट, आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम और दे आर नॉट गेटिंग। ये मतलब ये इसका ना एक मिशन चलना चाहिए, जैसे कि इतनी सारी चीजों के मिशन चलते हैं ना, रेवोल्यूशन होता है। आई फील समटाइम्स कि स्पिरिचुअलिटी का रेवोल्यूशन होना चाहिए, आई थिंक राइट? मुझे लगता है मैम कि कुछ ईयर से आया है, बिकॉज अभी अभी आई थिंक मेरी जनरेशन में भी, मिलेनियल्स की जनरेशन में भी, आई सी दैट पीपल आर सेइंग हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। बस मुझे एक चीज जो रियली हर्ट करती है कि डू यू रियली नो व्हाट, एग्जैक्टली, वही वहाँ प्रॉब्लम। ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है ना इंटरनेट के वर्ल्ड में, आई थिंक सब अपनी एक नई डेफिनेशन, इट्स वेरी यूनिक, आई डू अग्री, बट वही कई मिस इन्फॉर्मेशन से लोग, और यू नो द यूथ डजंट गो एंड डाइग्रेस इन अ डिफरेंट वे, दैट्स माय ओनली वरी एट टाइम्स, कि हम थोड़ा अवेयरनेस नहीं, आई लेके आए। फील कि पैराफ्रेजिंग हो सकता है, वो हम्म, जो लेकिन मूल में जो बात होती है ना वही होनी चाहिए, अलग या अलग नहीं हो सकती है। सो नहीं, व्हेन यू सेड ना कि मतलब अलग अलग डेफिनेशंस हैं, हम्म, समवेयर आई फील दैट अलग अलग डेफिनेशंस नहीं हो हाँ, सकते, प्रैक्टिस के तरीके अलग हो सकते अलग हैं, हो सकते हैं, या डेफिनेशन एक ही है, आई आई सेकंड यू ऑन दैट, लेकिन या लोग मतलब इसके लिए रेवोल्यूशन होना चाहिए, जैसे एआई के लिए हो रहा है, जैसे पता नहीं किस किस चीज की हो रहा है, मतलब इसके लिए रेवोल्यूशन होना चाहिए ताकि लोग ये जो सोल प्लान जो हम और तुम समझ रहे हैं मतलब सारे लोग भी इस चीज को समझें, इसका इम्पोर्टेंस। तो मतलब लाइफ की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लाइफ, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे, एक होता है कि मुझे मरना नहीं है क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, ऐशो आराम करना है, लव्ड वन से दूर नहीं जाना। आई थिंक मेरी डेफिनेशन ये हो गई है मैम कि मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी इसलिए और जीतनी है क्योंकि मुझे अपने बारे में और जानना है, लाइक देयर आर सो मेनी लेयर्स एज अ सोल यू कैन फिगर आउट अबाउट योरसेल्फ। वो बोलते हैं कि देयर आर 7 वाइसेस ऑफ अ सोल, greed, pride, envy, sloth, right? There are 7 vices. यस And यस। आइडली हमारा आइडिया ये होता है कि हमें जब इस अर्थ पे डाला जाता है, भगवान ये देखते हैं कि आप प्योर फॉर्म में डाला है मैंने, इसको जब बाय द टाइम यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, कितना बिगाड़ा कितना बिगाड़ा और कितना संभाल के रखा। एंड मेरी राइट। गोल मेरी बहुत यही है वंडरफुल, बहुत अच्छा कंपैरिजन ने किया, ये सही कि बात। द डे आई हैव माई लास्ट, if I'm ब्रेथ। blinking it for the last time, I'll just ask myself कि मैंने अपने आप को संभाल के रखा कि नहीं, और मेरे लिए वो एकदम। सक्सेस है, जेन्युइनली मेरे हाँ। लिए वो सक्सेस है कि और कोई कितने पैसे कमा लो, कितनी पावर दिखा लो, कितना कुछ भी कर करेक्ट। लो, आई मीन दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर वर्ल्डली लाइफ, दैट्स फाइन, अपना ब्रेड एंड हम्म। बटर चलाते रहो, बट मेरे लिए सक्सेस ये है कि आई कैन कीप माई सेल्फ बैलेंस्ड इन द वर्ल्ड विच इज करेक्ट। गोइंग। करेक्ट, मोटा बटर खाओ, मोटा ब्रेड खाओ, बट हाँ, असल में तो यही है कि जब वापस जाना है तो हाउ वेल यू प्रिजर्व योरसेल्फ, कितना सही बोला। आई रियली टोटली अग्री विथ यू कि वही लास्ट ब्रेथ की बात होती है। बहुत पहले ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक पोस्ट आया था कि बहुत सारे लोग जो है, आई थिंक 7 8 years ago, maybe you also have read that, I don't know, कि अ, जब लोग मरने लगते हैं तो उन लोगों को बहुत सारे अफसोस होते हैं कि ये हमने नहीं किया अपने लाइफ में, ये हमने नहीं किया। तो फ्रॉम देन आई डिसाइडेड कि आई विल डू एवरीथिंग विच आई वॉन्ट डोंट वांट टू रिग्रेट ऑन माय लास्ट ब्रेथ, क्योंकि वेरी वो नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट रिग्रेट। गुड, तो सिंस देन ना आई डू एवरीथिंग विच आई फील कि ये जो है ना लास्ट ब्रेथ जब रहेगी तो ये कैसा लग रहा होगा। एग्जैक्टली, I एग्जैक्टली, plan according to that. Will I be एग्जैक्टली, proud of it? वो जो 1 मिनट में सारे जो सब दिखते हैं जो बोलते हैं, will I be happy about it as a soul? That is what I'm thinking now. Now I don't think कि सही बात है, कितना पैसा कमा के भी कुछ भी करके ultimately if you are not there, there is no point. मतलब एब्सोल्युटली, बिल्कुल। टू लेकिन ये दैट लोगों रिलेशन। को कैसे समझाना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। कैसे ये चीज को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, मतलब ठीक है पैसा एक फैक्टर है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा होके भी ये सेंस नहीं है, रादर दे डोंट इवन recognize this. What I have observed, Bela, that people don't recognize the need of this, and that is a major concern for me. For me, major concern.
आई थिंक मैम मुझे वही लगता है कि ये भी एक रियलाइजेशन ना, यू अट्रैक्ट थिंग्स दैट कम फ्रॉम विद इन यू। सो मुझे लगता है कि व्हेन पीपल गेट, वो आप बोल रहे हैं ना, जब इतना सबमर्ज हो जाएंगे ना अपने शूज में, अपनी नेगेटिविटी में, या अपने दुखों में, आई थिंक वहीं पे दे विल, लाइक फ्यू पीपल choose to हम्म। take their life, right? But there'll be people who will understand कि अब मुझे यहाँ से निकलना है, and spirituality is the only way. Yeah? Spirituality को I always say, you can start with simple things as emotional intelligence. एक emotional intelligence का I can say just start and pick a course of emotional intelligence, because राइट, राइट। spirituality starts from understanding how you think, your thoughts are, your emotions are, उसको regulate कैसे करते हैं। एब्सोल्युटली। आई थिंक उस वाले वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब हम कहीं दुनिया छोड़ के जा रहे हैं या संन्यास ले रहे हैं, राइट? If they don't understand that kind of language, start with emotional intelligence, and that's again a very popular buzzword nowadays in corporate and at life. So I think, and वो आपको डे टू डे में जब आप देखेंगे कि वो आपको कैसे हेल्प कर रहा है, आई थिंक that's the first starting point. So maybe I'll say कि किसी को भी अगर जाना है स्पिरिचुअलिटी में, I feel that emotional intelligence is like a blueprint, is a आई structured way of, टोटली अग्री विथ यू, आई टोटली अग्री कि yeah, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, अगर उसको देखा जाए, एम्पैथी देखो या फिर right, माइंडफुलनेस देखो, सेल्फ रेगुलेट, सारी जो right, चीजें हैं, मोटिवेशन, ये सब की सब एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को डिवाइड कर दिया divide करते हैं, है। right, राइट, आईक्यू बढ़ा नहीं सकते लेकिन ईक्यू तो बढ़ा ही सकते हैं। सही बात है, Right, सही, so yeah, even I have exactly same opinion about, so that's yeah, why even I felt कि इसीलिए मेरा emotional intelligence जो है, I want to work on, because actually indirectly ये indirectly I think, spirituality yeah, synonym absolutely, है। that बहुत अच्छी स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है जो आपको स्पिरिचुअलिटी में मिल जाएगी, वैसे मन भी नहीं लगता। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि EQ इज समथिंग जो हर किसी में कैपेबिलिटी है बिल्ड करने की। यू डोंट नीड मनी, और कोई बहुत बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पिक अप यूट्यूब वीडियोस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, स्टार्ट विद एज बेसिक एज दिस, एंड Yeah, गो बैक एंड टेल योर सेल्फ कि आज मैंने ये सीखा, नाउ how I show up to my relationships around me, in my own correct, family. Let me correct। try and work on this. Start with this small step. And हम्म। वो वहीं से build होके you will see the cumulative effect, and then I'm sure उसके बाद कोई option नहीं होगा, they will have to go into spirituality to आई थिंक हाँ, understand वो their people. स्पिरिचुअल बन जाएंगे, पता चलेगा कि ये ऐसा दरवाजा है, ये इसमें से हाँ, घुसा तो फैंसी दिख रहा था और उधर से हाँ, निकले तो ट्रांसफॉर्म होके निकल गए। ऐसा ही transform. है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, वो एक्चुअली Yes, ऐसा ही रास्ता है। यही आई एम रास्ता है। रियली राइट, आई थिंक कि अगर ऐसे कुछ लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करके, कुछ लोगों को हम्म, प्रॉपर रिलीजन से, या फिर कुछ लोगों right, को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी वर्ड से ही हो जाएगा काम। हाँ, बट right, पीपल शुड ट्राई टू वर्क ऑन देयर इमोशंस एंड इंक्रीज देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, इजंट इट? right, बहुत बहुत absolutely. मजेदार जर्नी रही आज के हमारे ये सेशन की। अभी हम लोगों Very, ने very. पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात नहीं किया। हम आई थोड़ा वो थिंक इवॉल्व स्टेज में चले गए थे, बट आई थिंक आप जो बोल रहे थे कि पीपल आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो मुझे लगता है कि ये एग्जैक्टली। स्टार्टिंग पॉइंट है। लाइक इट विल हेल्प यू इन हम्म। योर कॉर्पोरेट जर्नी, जो कॉर्पोरेट्स में भी है, जो आपकी लाइफ में भी है, हाउ टू शो अप टू द वर्ल्ड। और अगेन एज आई ऑलवेज से, वो जो ड्राइविंग, वो जो कंट्रोल है ना अपनी लाइफ का, किसी को मत। एंड वो कंट्रोल इससे नहीं आता है कि यू आर रिबेलियस कि मुझे लाइफ में ये करना है या वो करना है। कंट्रोल इन लाइफ कम्स फ्रॉम हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ इमोशनली। अपने करेक्ट। थॉट्स पे कंट्रोल आएगा आपको, आपके इमोशंस पे कंट्रोल आएगा, एंड वो जो पावर आपको देगा ना, देन आप सब कुछ कर लोगे उसके बाद लाइफ में। मुझे लगता है उसके बाद कोई इशू नहीं है। यस। इट्स जस्ट ट्रू, ट्रू। मैटर ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। तो उस पे कंट्रोल, और ड्राइविंग सीट हमेशा अपने पास, तो ड्राइवर का स्टीयरिंग व्हील इज ऑलवेज आई फील शुड बी वेरी विद वेल सेड, वेरी वेल सेड बेला, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग। और मतलब कि हम लोगों की, मतलब आई वाज फीलिंग कि हम लोग एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। यू। बट इट वाज ग्रेट। यू आर वंडरफुल, सो यंग येट सो स्पिरिचुअल, एंड definitely very intelligent emotionally, very very. Thank you थैंक so यू, much for this session and your time. I hope that I see you in future as well for another session. Thank you so much. थैंक यू सो मच।